Good morning, students. Today I am going to tell you last question from this exercise 9.1. That question is question number 15. What is given in this question? Look this side. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, look this side. This is your given figure जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है. What is given? A straight highway leads to a foot of a tower. So AB is the height of the tower as h meter. जो मैंने लेट क्या लिया है h मीटर कंसिडर कर लिया. AB is the height of the tower. Now a man is standing at the top of the tower. A man standing at the top of the tower. Observe a car at angle of depression. Observe a car means this is your car as angle of depression as 30 degree. AB is the height of the tower. Let as h meter. From the top of the tower, one car is moving towards the tower. At the initial point D, the angle of depression from the top of the tower to the car is 30 degree. यहाँ से अगर मैं इस इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे अपने पास में कार का क्या है इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे अगर देखूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है अपने पास में 30 डिग्री. नाउ आफ्टर 6 सेकेंड के बाद में डी से फाइनल पोजीशन कहाँ तक आ गया सी पॉइंट तक कार ने डिस्टेंस ट्रेवल की कितने 6 सेकेंड. आफ्टर 6 सेकेंड नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 to 60 डिग्री. 30 से कितना हो गया 60 डिग्री में चेंज हो गया. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस गिवन क्वेश्चन C to B, the distance travel from C to B, how much time taken by the car to reach at point from C to B means foot of the tower. टावर के फुट तक आने में C पॉइंट से B पॉइंट तक आने में कितना टाइम मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करके बताना है. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स. इस क्वेश्चन में मैंने आपको हर चीज बताई है. लेट AB बी द टावर एज हाइट एज h meter. Now D and C are the initial and the final position. This is your initial position and after 6 seconds final position is C. Now at this point the angle of depression is 30 degree. For this point the angle of depression is 60 degree. ये angle 30 and ये कितना है 60. These two lines are parallel to each other because this is your horizontal level from the I side. अगर मैं I side की बात करूँ एज ऑब्जर्वर, अगर मैं यहाँ पे टॉप पे हूँ तो मेरा I side के अकॉर्डिंग ये हॉरिजॉन्टल लेवल है. यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बार तो एक पोजीशन के ऊपर D पोजीशन के ऊपर बात करूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30. नाउ आफ्टर 6 सेकेंड पोजीशन ऑफ कार क्या हो गई चेंज हो गई. D से कहाँ आ गई C के ऊपर आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है अपने पास में 60 डिग्री. ओके, मुझे कैलकुलेट करना था द डिस्टेंस टाइम टेकन टू रिच द कार फ्रॉम C पॉइंट टू B पॉइंट मीन्स फुट ऑफ द टावर तक आने में इसको कितना टाइम कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है. नाउ this is your angle 30 degree and 60 degree as angle of depression. These two levels are parallel to each other. ये भी horizontal level है और ये horizontal line है अपने पास में, base line है, दोनों parallel है. AD is your transversal line. That's why ये angle 30 है तो ये angle भी कितना हो जाएगा अपने पास में 30 degree. For the second case BD is parallel to this line A L ले लो इसको and now AC is your transversal line. So that angle कितना अपने पास में 60 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा एंगल 60 डिग्री बाय अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लुक दिस साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस बिटवीन C एंड D इन 6 सेकेंड ये अपने पास में. व्हाट वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे आपको लिखना है फाइंड आउट. जो अपन को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन बाय द कार to travel distance between BC. B से C तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लग रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है. हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. AB is the height of the tower. We have two right angle triangle here, ABC and ABD. We have two right angle triangle ABC and ABD. Okay, now in triangle, in first right angle triangle, in triangle ABC, again
tan theta perpendicular upon base, we have to use trigonometric ratio. This is your height and this is your distance. Height and distance के बीच में relationship क्या होता है? tan theta. That's why tan theta equals to perpendicular upon base. The value of tan theta की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपने पास में? c. So angle ACB is equals to perpendicular. Perpendicular कितना है अपने पास में? AB. And what is your base? BC. The value of AB, in this case, the value of AB is H, and the value of BC, B to C की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी है अपने पास? X. Now, tan angle ACB कितना है अपने पास में? 60 डिग्री. Place here 60 डिग्री. Now, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है according to trigonometric table? √3. This is H upon X. H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3x. Can I say this is your equation number 1? Okay, this is your equation number 1. In another right angle triangle, in triangle ABD, दूसरा right angle triangle कौन सा हो जाएगा? ABD. ABD. Once again, perpendicular upon base क्या हो जाएगा? tan theta. Now tan, the value of theta here. थीटा से पहले अपन एंगल लिखेंगे ADB. एंगल ADB इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस, द वैल्यू ऑफ बेस BD. यहाँ पे आ जाएगा BD. देन tan एंगल ABD ADB कितना हो जाएगा? 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB कितना है अपने पास में? हाइट क्या लेट किया हुआ है? H. एंड BD, B to D, ये हाइट मैंने क्या ये डिस्टेंस कितनी लेट की है अपने में? ये x मीटर है. B से C तक कितना है? x. एंड C से D तक कितना है? y. तो टोटल एंटायर लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास? x प्लस y. नाउ tan 30 1 अपॉन √3 विच इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस y. द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू √3h. कैन आई से दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और वो आ गई अपने पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड. Can I place the value of h from equation number 1 into equation number 2? So put the value of h from equation number 1 into equation number second. Equation number second में जैसे ही h की वैल्यू प्लेस की तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x plus y is equals to √3 द वैल्यू ऑफ h कितना है यहाँ पे अपने पास में? √3x. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √3x आ जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करें अपन. देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 कितना आएगा अपने पास में? 3 एंड x एज इट इज. नाउ x शिफ्ट अनदर साइड, देन y इज इक्वल्स टू 3x माइनस x. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 3x by x, देन क्या आ जाएगा अपने पास में? 2x. y is equals to 2x. मैं जनरली हमेशा एक चीज बोलता हूं, if we are having two variable then we have two equations. यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? h1 x2 y3 मीन्स अपने पास में 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 इक्वेशंस होनी चाहिए सर. यहाँ पे तो अपने पास 2 इक्वेशन थी. दैट्स वाई 2 इक्वेशन के कारण यहाँ पे y is equals to 2x एक रिलेशनशिप बन के आया अपने पास. ओके, what we have to calculate? We have to calculate the distance, how much time taken by the car to reach from C point to B point. ये मुझे कैलकुलेट करना है. अब समझना है इसको किस अकॉर्डिंग करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get y is equals to 2x. y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 2x. इन दिस केस देयर इज गिवन कार इज मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड. कार किसमें मूव कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है. मीन्स फ्रॉम C to D, इसको जितनी डिस्टेंस यहाँ पे C से D तक जो डिस्टेंस है उसको जिस स्पीड से कार ट्रेवल करेगी उसी सेम स्पीड से कार B से C तक की डिस्टेंस को भी ट्रेवल करेगी. ओके, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन BC एंड CD में कितना आ रहा? y इज इक्वल्स टू 2x. देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? y अपॉन 2. अगर मैं जर्नल वे में अगर बात करूं तो इसमें क्या है? C से D तक की डिस्टेंस के अंदर जो रेशियो है और B से C तक की डिस्टेंस के बीच में जो रेशियो है मीन्स x अपॉन y. This is equals to 1 upon 2.
जो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस का रेशियो है वो कितना है 1:2। तो टाइम को भी, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो टाइम का भी सेम ही रहेगा रेशियो। तो टाइम में भी कितना हो जाएगा, x को ट्रेवल करने में, जैसे x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा कार को, y को ट्रेवल करने में कितना लगा 6 सेकेंड, तो x को ट्रेवल करने में कितना लगेगा 1/2 हो जाएगा। सो टाइम टेकन by the car to travel distance BC क्या होगा अपने पास में, C से D तक का टाइम कितना था अपने पास 6 सेकेंड, तो B से C तक कितना हो जाएगा 6/2 = 3 सेकेंड्स। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप पूरे क्वेश्चन को समझना ढंग से, क्या क्या गिवन है। इन दिस क्वेश्चन AB इज योर हाइट ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आई एम लुकिंग एट विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द पॉइंट D, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द कार इज 30 डिग्री। यहाँ पे कार के लिए अपने पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। नाउ कार इज मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग, सॉरी टूवर्ड्स द टावर। After 6 seconds, the angle of depression change 30 to 60 degree. Angle of depression 30 से कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। Now the car comes from C point to B point. C point से कहाँ तक आ रही है, B point तक आ रही है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम C point to B point, मीन्स फुट ऑफ द टावर तक आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। तो मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की है। हाउ कैन यू सॉल्व, फर्स्ट लुक द राइट एंगल ट्रायंगल ABC अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan एंगल ACB, इसके लिए बात करूँ तो कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 कितना होता है √3, हाइट अपॉन x, द परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, तो ये आ गया h अपॉन h इज इक्वल्स टू कितना होगा √3x। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इन द सेकंड केस ABD, दूसरा केस क्या है अपने पास में ABD परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू कितना होगा tan थीटा, अगेन थीटा की वैल्यू कितनी है ADB, ये कितना है अपने पास 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 विच इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस y हो गया, x प्लस y इज इक्वल्स टू हो गया √3h। इन दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो x प्लस y इज इक्वल्स टू √3, द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 आई कैन प्लेस इनटू इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में जैसे ही वैल्यू प्लेस करी तो कितना हो जाएगा √3 इंटू x, जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x, x मूव्स अनदर साइड 3x माइनस x कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू y। समझ में आया? मीन्स दोनों के डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है x है और y के लिए, y x के बीच मीन्स B से C तक की डिस्टेंस जो थी उसका जस्ट डबल क्या है CD है। तो कार अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो टाइम का भी क्या होगा, रिलेशनशिप सेम ही होगा। अगर कार मूव कर रही है सेम डिस्टेंस से मीन सेम स्पीड से, तो B से C तक आने में जो स्पीड के अकॉर्डिंग अपने पास कार है जितना टाइम लगेगा वही B से C तक के लिए लगेगा। C से D तक का रिलेशनशिप है वो कितना दिया हुआ है अपन को, y इज इक्वल टू 2x है। 2x का मीन्स जो B से C तक की डिस्टेंस उसका जस्ट डबल है। तो अगर मैं C से B तक की डिस्टेंस अगर टाइम निकालना चाहूँ कि कितने टाइम में कार ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहाँ पे कितना ले जाता है इसने 6 सेकेंड। इन दोनों के बीच में रिलेशन बात करूँ तो x कितना होगा y/2, मीन्स जो C से D तक की डिस्टेंस थी उसका जस्ट हाफ है। तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा वो क्या होगा उसका जस्ट हाफ। तो यहाँ पे क्या गया, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस BC 6/2 विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सेम क्वेश्चन मैं एक और मेथड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लुक दिस साइड, फॉर द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक लास्ट तक सेम टू सेम कॉन्सेप्ट करना है। फर्स्ट यू हैव टू टेक ट्रायंगल ABC जिससे अपन ने रिलेशनशिप फर्स्ट बना लिया। So from the equation, from the triangle ABD, x plus y is equals to √3 plus h, √3 into h आ गया। This is your equation number second. From equation number 1 and 2 दोनों को solve किया, दोनों को अगर वैल्यू प्लेस की तो x is equals to कितना आ रहा है y/2 और y is equals to अगर ले रहा हूँ तो मेरे पास में कितना आ रहा है x/2। Okay, how can you solve this question? इन द अल्टरनेटिव मेथड, अगर दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग करना है, अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड के अकॉर्डिंग बात कर रहा था तो इसमें क्या ले सकते हैं अपन, द स्पीड ऑफ द कार इज v मीटर पर सेकेंड। स्पीड में क्या ले लूं v मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूं, लेट स्पीड ऑफ
car is v मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड मैंने क्या लेट कर ली, v मीटर पर सेकेंड मैंने स्पीड लेट की है। नाउ फॉर द डिस्टेंस किसके लिए बात कर रहा हूँ, कौन से डिस्टेंस के लिए बात कर रहा हूँ, C to D, C से लेके D तक की फर्स्ट डिस्टेंस के लिए बात कर रहा हूँ। फॉर डिस्टेंस CD के लिए बात कर रहा हूँ। नाउ वी नो वेरी वेल स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द स्पीड हेयर, v मीटर पर सेकेंड। प्लेस हेयर v इज इक्वल्स टू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स के बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो कितना आ रहा है, y, एंड टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस d to c कितना है, 6 सेकेंड। सो प्लेस हेयर 6, यहाँ पे क्या पुट कर दिया मैंने, 6। तो वैल्यू ऑफ y कितना आ जाएगा, 6v। कैन आई टेक, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर रहा हूं। नाउ फॉर डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस के लिए बात कर रहा हूं, BC के लिए। वंस अगेन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हेयर स्पीड क्या यूनिफॉर्म चेंज नहीं हुई, तो स्पीड कितनी आ गई अपने पास, v मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस C से लेके D तक के लिए, C से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी है अपने पास, x, एंड टाइम। सर यही तो नहीं पता, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम। तो टाइम के लिए मैंने इसको क्या प्लेस कर दिया यहाँ पे, t। ओके, नाउ v इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x। कैन आई प्लेस द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से मैं x इज इक्वल टू y अपॉन 2 पुट कर सकता हूँ। हेयर देखो y इज इक्वल टू 2x आया, x की वैल्यू निकालूंगा तो y अपॉन 2। तो पुट हेयर x इज इक्वल टू y अपॉन 2 इंटू t। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, t। तो प्लेस t हेयर, t इज इक्वल टू y अपॉन 2। तो v मैंने वैल्यू इंटरचेंज कर दी इसकी, t को मैं इस साइड में लेके आ गया, v यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से अगर मैं y की वैल्यू देखूं तो कितना आ रहा है, 6v। सो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6v अपॉन 2v। दोनों को अगर मैंने सिंप्लीफाई किया, द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 seconds। Okay, the time taken by the car to travel the distance from C to B is 3 seconds. ये किस अकॉर्डिंग हो गया अपने पास में, एल्जेब्रिक मेथड के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व कर लिया। समझ में आया, वापस समझना क्या किया मैंने। हेयर आई एम लेट द स्पीड ऑफ द कार एज v मीटर पर सेकेंड। मैंने स्पीड क्या लेट कर ली इसकी, v मीटर पर सेकेंड लेट कर ली। तो C से D तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अपने पास में स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड क्या थी, v मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक के लिए y, और टाइम कितना लग रहा था इसमें, 6 सेकेंड। सो प्लेस हियर 6। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6v। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 6v। आफ्टर दिस फॉर द डिस्टेंस BC, B से लेके C तक की डिस्टेंस के लिए बात करूं तो मैं कितना ले रहा हूं उसको, x। इसको मैंने x लेट कर रखा था, तो स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द डिस्टेंस ओवर हियर, डिस्टेंस यहाँ से B से लेके C तक की कितनी थी, x। प्लेस हियर x। And what is the time? We don't know sir what is the time. That's why we put here t. मैंने t की वैल्यू इधर चेंज की और v की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दी। Then t is equals to यहाँ पे क्या किया, t की वैल्यू इधर शिफ्ट करने से पहले मैंने x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या पुट कर दिया, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y अपॉन 2। तो मैंने x की जगह क्या प्लेस किया, y अपॉन 2। हेयर t एज इट इज, अब t इधर शिफ्ट कर दिया और v को इधर शिफ्ट कर दिया, t इज इक्वल टू y अपॉन 2v। The value of y from equation number 4 is equal to 6v. Place here t is equal to 6v upon 2v. Cancel out किया तो कितना आ गया, 3 seconds. Okay, these two methods are correct. Which one you choose, it's up to you. Okay, now today our exercise 9.1 is over. From tomorrow onwards I will tell you extra question from this exercise. Okay, thank you class.